آپ سب حضرات کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہمارے سے ملنے کے لیے، ہمیں مبارکباد دینے کے لیے، اور ہم آپ سے آپ کو دلگیر دھاگ بھائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ چیمبر آپ کے سامنے ہے، آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے ان شاء اللہ۔ میں گزارش کروں گا ہمارے صدر جو ہے مجھے چوہے صاحب کہ وہ اپنے خیالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ ہم جو ہمارے تاجر بھائی وہ امپورٹر ہیں، دکاندار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، جن کے لیے کوئی چیمبر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس کی رحمتوں کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عہدے نوازے۔ میں پریزیڈنٹ ہوں، شاہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، بٹ صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ ہمارے ای سی ممبرس، مطلب ای سی ممبر دا سب نظر آتا ہے، یہ سب ہمارے ای سی ممبر، ایگزیکٹو ممبر، بس ہم تعارف کراتے ہیں۔ میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز کا تعارف کراتا ہوں۔ موہن صاحب جی، موہن چودھری صاحب، زین چودھری صاحب، آصف صدیق صاحب، خواجہ صاحب، عبدالوہاب خان صاحب، ندیم اسلم صاحب، شاہد خان صاحب، میاں راشد رشید صاحب، اور مرزا عرفان، مرزا قاسم اور ہارون صاحب۔ ہارون رشید صاحب، ہارون رشید صاحب بھی تشریف لے آئے۔ یہ تمام ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی جی آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ایکچولی مبارکباد کے مستحق آپ لوگ ہیں، کیونکہ یہ چیمبر جو ہے، یہ چیمبر ہمارا نہیں آپ کا ہے، آپ نے اس میں آنا ہے، آپ کے یہاں پہ کام ہونے ہیں، آپ کے معاملات حل ہونے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہر مارکیٹ کو یہ میسیج دیں کہ مارکیٹ وائز ہمیں اپنے پرابلمز بتائیں۔ جب وہ پرابلم بتائیں گے، ہم ان پرابلم کا سلوشن ڈھونڈیں گے کہ کس افسر نے کرنا ہے، کہاں سے ہونا ہے، پھر اس کو یہاں پہ بلائیں گے۔ آپ کو بھی یہاں پہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی یہاں تشریف لائیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں گے۔ اور اس کو یہ نہیں ہوگا یہاں پہ کہ جی وہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا، جیسے پرانے چیمبر میں ہوتا ہے کہ جی بلایا افسروں کو، اپنے اپنے کام کرائے، یا جو مین لوگ ہیں ان کے ایک دو کے کام کرائے اور میٹنگ خرد برد ہو گئی۔ جو افسر آئے گا، جو یہاں پہ کام کرے گا، بات کرے گا، بتائے گا، ان سے ہم ٹائم لیں گے ان کاموں کا، اس ٹائم پہ وہ واپس آئے گا یہاں پہ، آپ لوگ تشریف لائیں گے اور وہ بتائے گا جی یہ آپ نے 10 کام کیے تھے، اس میں 8 ہو گئے، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پہ آ کے بتائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ممبر ہوں، جتنے ممبر زیادہ ہوں گے اتنی اس کی اسٹرینتھ ودے گی، اتنا ہی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کی اسٹرینتھ کا علم ہوگا اور آپ کے معاملات حل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکیں گے۔ ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے، یہ چیمبر ہر وقت کھلا ہے، کوئی اس کے باہر ریڈ لائٹ نہیں ہے، کوئی
पंजाबी च कहते हैं ना लाल बत्ती, कोई लाल बत्ती नहीं है, कोई ऐसी बत्ती नहीं है जो ट्रक के पीछे लगा दे। हर मामला आपके सामने हल होगा, आपके मंशा के मुताबिक उसको हल किया जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनाएं। मेंबर्स वो बनाएं जिनको वाकई दिलचस्पी हो काम करने की, काम कराने की। देखिए कुछ लोग होते हैं वो जो सिर्फ ओहदों के भूखे होते हैं, फोटो सेशन के भूखे होते हैं। यहाँ आपको कोई फोटो सेशन का भूखा नज़र नहीं आएगा। यहाँ आपको वो पूरी टीम बैठी है, ये वो लोग हैं पूरे लाहौर से, हर शोबे से तल्लक है इनका। एक एक शोबा जिसमें मर्जी आप चेक कर लें, हर शोबे से है। ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हर तबका जो कारोबारी है उसके मसाइल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मसलों से भरा पड़ा है। कहीं रोड का मसला है, कहीं लाइट का मसला है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कहीं टैक्स के मसले हैं, कहीं एफबीआर के मसले हैं, कहीं डीसी के मसले हैं, कहीं गवर्नमेंट के मसले हैं, कहीं चलानों के मसले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके हर मसले में आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और आप हमें अपने से पीछे नहीं डालें। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। और ये हमारे जो प्रेसिडेंट हमने चुने हैं लाला नसीम असलम साहब, ये बेदाग आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और कोई इनको लालच नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, जितना ये दफ्तर है, इतना बड़ा दफ्तर इन्होंने हमारे लिए बेदोश बनाया। और इनके बेटे हैं, ये अख्तरमान हैं, उसामा भाई हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारे साथ शामिल हों और हम जो भी मसाइल होते हैं, शाहजी ने हमारे बड़े बड़े काम किए हैं, तो शाहजी को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दराज फरमाए। अल्लाह ताला माशाल्लाह शाहजी का तो पूरा बैकअप है हमारे माशाल्लाह, हर जगह पे खड़े होते हैं हमारे। तो हमारा उधर कोई रोड का मसला है, वो शाहजी को हमने बताया कि वो रोडों की रेडियाँ उठ जाती हैं, तो वो शाहजी ने यकीन कहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आपका जल्द से जल्द हल हो जाएगा। और हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने दावत दी, हम आपके पास आए और हमारी और आपने जो बातें की हैं शायद पहले भी हम जाते आते रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बातें आपने की हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। और हमारे साथ ये जो बच्चा है हमारा अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह ये बहुत दौड़ भाग वाला बंदा है। मैं भी 50 साल से यूनियन लीडर हूँ इशरे का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बड़ी ईमानदारी से उधर काम करते हैं। अगर हमारे पास कोई केस ऐसा आ जाता है, इंशाल्लाह हमको अच्छे तरीके से हल करते हैं। और आज आपकी टीम के साथ ये दोस्तों में बैठ के जो आपने बातें की हैं वो दिल को बहुत भाई हैं। अल्लाह ताला आपको भी हम सबको कामयाब करे और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अच्छे दोस्त साहबान इसमें शिरकत करें और हमारे साथ शाना बेशाना चले। अस्सलाम ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ 1:02 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਮਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੌਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ
मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें एक बेहतर हाथ बचे, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता ਇਹ ਮਾਲਚਲਾ ਨਹੀਂ ਮਤ जी 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 बिल्कुल ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस तो पिछले दिनों च किसी का मामला था पैसों का, तो इन्होंने माशाल्लाह बैठ के सिद्धा कराया। एक जगह तलाक हो रही थी किसी कारीगर की, साड़ी मार्केट च किसी ने जरासीम नहीं है कि अगे होकर किसी के सिर पे दस्त शफकत किया जाए। ए लाला जी ने 3-4 काम बड़े अहम तरीन इन्होंने आख्या है चोई साहब, वो यानी कोई दर्द नहीं लैंदा सी इस गल दा। हुण ऐसा भी साडा मामला है कि कमेटी वाले कारपोरेशन वाले अगर आंदे ने ना ते साडा दिफा करदे, ਜੀ ਜੀ वरना साडा दिफा नहीं सी हुंदा। साडे बोरे साडे काटन मालां नूं चुके जांदे सन ते और भी ज़्यादा अपने निगरानी च रखो, निगाह च रखो कि सानूं तकलीफ ना होई को पहुंचे। ने इस तरह चैम्बर बनाया है हम जैसे लोगों के छात्रों के लिए स्पेशली, वरना ऑल ओवर द इंडस्ट्रियल्स के लिए सुना था, बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सुना था, ये ट्रेडर्स के लिए जो आप लोगों का इसके अलावा बहुत हमें इस चीज़ की खुशी है और हम इस चीज़ की उम्मीद भी करते हैं कि हम मेंबर्स भी बढ़ेंगे और आपका साथ भी देंगे और आपसे भी इस चीज़ से है कि आप हमारा फुल इंशाअल्लाह। और सेकंड जो मेन इनकी जो सारी बातें दोस्तों ने कही हैं उसमें सेम मेन जो प्रॉब्लम है ना ट्रैफिक का है। बस बैठ अक्सर हमारे कस्टमर्स जो है ना वो इस चीज़ से भागते हैं कि जी जैसे गाड़ी पार्किंग प्रॉब्लम बाय ट्रैफिक, अगर कोई गाड़ी छोड़ के जाते हैं डैमेज हो जाती है, चलान हो जाता है, लोग उठा के ले जाते हैं, इसका थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ऑलरेडी वर्क हो रहा है, हमने बहुत दफा वर्क कराया है, पता है होके जाना है, कहीं से एग्जिट होना है, यहाँ से होके आना है। तो इस वजह से भाई ने बात की कि वो जो कोई किसी का मलबा नहीं होता वो हम पे करता है। पूरी सब डिपार्टमेंट्स को कोई नजर नहीं आती, शहजादी बिल्डिंग नजर आती है। इस चीज का जरा टाइम से रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कितना तूफान है वहाँ पे, अल्लाह की जात ने उसको इंशाल्लाह। और शाह जी दुआओं से शाजी गजा बन गया। जी ख्याल भाई जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से लोगों की ताजत भाई सारे बढ़ रहे हैं, इससे कि जो जितनी डेवलप है वो आहिस्ता आहिस्ता मेन पे चलेगी। लेकिन जो इनका जहाँ से हम तीसरे का नाम निकला है जो पुराना मेन बाजार था, उसमें अभी वैसे ही प्रोजेक्ट ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, उसके मामला वैसे के वैसे ही हैं जो 35-40 साल से पहले जैसे इचरा पुराना नज़र आता था, या सीवरेज के निज़ाम थे ख़राब थे, या वैसे कोई ताजर भाई छोटा मोटा मामला थे, तो वो कभी भी हल नहीं हुए उस साइड में। तो आपने तो बड़ा NGO की तरफ से भी मीटिंगें हुई, फिर और भी काफ़ी MP भी आते रहे, और भी मामला आते रहे, दोस्त भी आते रहे, तो हमें इधर आके बड़ी खुशी हुई। चले कोई बात सुनने वाला भी है, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो हमारा जो ज़्यादा चौक है ना रेडियो वाला, पहले वो रेडियो वाला मशहूर, जैसे जैसे उन्होंने नाम रख दिया कि ज़्यादा चौक, नाम ज़्यादा चौक हो गया, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा। यानी कि इलाके में ताजरों में जितना भी गंदे पानी का निज़ाम है, सीवरेज की अभी उन्होंने कंप्लेनें हमने की थी, यही 15-20 साल से हो गए मैं उन्होंने सीवरेज डाले, लेकिन आगे आगे स्टॉप हो गया। फिर अब मेन से तो इन्होंने काम स्टार्ट किया, तो जहाँ से हम चाह रहे हैं कि पहले जो पुराना इचरा जिसने नाम निकाला है तो वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही। तो हमारी ये आप दूसरे रिक्वेस्ट है कि मेन प्लान को भी ना उसमें भी डेवलपिंग करते हैं। मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, शाहजी दी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, भट्ट साहब दी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, आगा साहब दी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ,
اس معاملے ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਆਵਾਮ ਜਾਏ ਬਾੜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ਸਾਨੂੰ तौफीक देवे, हिम्मत देवे, ज़िंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे। अल्लाह ने टीम बहुत अच्छी देती है, सारे अपने अपने शोबे के मास्टर ने, डॉक्टर ने अपने अपने शोबे ने, और सब नूं शौक है काम करन दा। ये सब अपने अपने शोबे के मास्टर हैं, इनको शौक है काम करने का। देखिए हमने कोशिश किया वो टीम चुने जो टिकटॉकर ना हो, वो टीम चुनी है जो अपने आप को आगे ना करें। इलेक्शन वो लड़के आए हैं, आगे आप बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं, ये फर्क है। मैंने क्या कहा पहले कि ये चैम्बर आपका है, मुबारक आपको है। ये अल्लाह ने इज़्ज़त लाहौर के ताजरों को दिया है। हमें तो एक मोहरा बनाया ना अल्लाह ने, हमें अल्लाह ने एक मोहरा बनाया, लेकिन ये तब भी मुमकिन है जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। आप लोग हमें लिख के दें, हम उस पर पूरा अमल करेंगे, पूरी ड्यूटी देंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट देंगे। आप मेरी इचरे वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है आपके वो रेडी वाले चौक का एक एक चीज़ मुझे पता है वहाँ की, वाकई वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता, तो गाड़ी मोटरसाइकिल तो बड़ा मुश्किल काम है। आप दे लिख के, इस वक्त तो हुकूमत भी चाह रही है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, काम हो रहे हैं, तो बिल्कुल कराएंगे और इनको जल्दी हल करेंगे। ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਚ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੈਬ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲੈਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਜਟ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇं, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਰਡਨ ਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਡੀਪੂ ਨਾਲ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, वक्त पाया उन्होंने ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਤਾ, ਉਧਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ इंशाअल्लाह शाना बशाना। तो पहले जो है ना जो बात कंटिन्यू है वो पूरी कर देता हूँ इंशाअल्लाह। तो मेंबरशिप के लिए जो है ना आप लोग इस काम करें, अपने मार्केट्स में मेंबरशिप ले, और जो लोग आए हैं वो फॉर्म ले लें और प्लीज़ वो मेंबरशिप जो है ना पूरी कर दें। मैं लाहौर चैम्बर्स में भी जो है ना कमेटी, मेंबरशिप कमेटी पे जो है ना
मेंबर रहा हूँ और अपना पासपीड़ा का जो है ना उसका 10 साल से कंटिन्यू हूँ। 5 फीटा बदामी बाग किए हैं। मैं पासपीड़ा से हूँ। शाहिद ऑटो मेरा बाराईबाग में ऑफिस है और पार्ट्स का बिजनेस बहुत देर से कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पार्ट्स भी है मेरा और ये भी, लेकिन मतलब बात वही जो बेहतर है कि मेंबरशिप्स के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है क्या बता दीजिए। मैं मेरा ताल्लुक फिरोजपुर रिश्ते से है और मैं बेसिकली मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्री पूरे लॉर्ड रीजन का प्रेसिडेंट भी हूँ और तकरीबन फिरोजपुर बोर्ड का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। हमारा बेसिकली मार्बल का ग्रेनाइट और मेरे फिरोजपुर पे सैनिटरी के भी 2-3 आउटलेट हैं, उन्हीं को मैं टेक केयर करता हूँ। और यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल जो इंडस्ट्री है इसका मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। और इंशाल्लाह जैसे हम फिरोजपुर रोड पे महबूब सेठी साहब हमारे चेयरमैन हैं, तो वहाँ पर भी हमें छोटे छोटे जो भी आपने मसले मसाइल बताया ना, खास तौर पर आपने रेडी का चौक का जिक्र किया है, वो बेसिकली वो ठेकेदार जो आपका है ना उसमें उसके खिलाफ लोगों ने स्टे लिया हुआ और वो इतना गवर्नमेंट में तो पता है हर चीज़ का, लेकिन मतलब वो हो जाएगा हल, उसके ऊपर लगे हुए हैं, आलम स्पीकर साहब भी लगे हुए हैं, तो मियां नवाज साहब को ज़्यादा हो जाएगा वो हल। तो इंशाल्लाह बेसिक मकसद ये है यहाँ पे छोटे ताजरों की, जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा आउटलेटर है, जो उसका एक प्लेटफॉर्म है, जो इंशाल्लाह मसले मसाइल होंगे कि हमारे सदर साहब हैं, प्यारा साहब है, ये पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी जितनी बैठी हुई है, इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों को पहले तो वेलकम भी करते हैं और जो मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह खुलूस दिल के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल वहाब, मैं पाकिस्तान ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्ट एंड डीलर एसोसिएशन के एग्जेक्टिव मेंबर हूँ और ये चैम्बर आपका है। मेरा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो बदामी बाग से। हम ऑटो पार्ट्स के जो इंपोर्ट और डीलर्स के जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से भी जो उनसे हम जो उनसे वहाँ पर काम करते हैं। ये चैम्बर आपका है और आपको देखकर यहाँ पर बड़ी खुशी हुई, आप आए और आपके ये जो छोटे मसाइल हैं इतने वो नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप इनको हमें लिख कर देंगे, इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे। ये टीम सारी बैठी हुई है आपके लिए। और एक और जो मेन गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को भी मज़ीद मार्केटों को भी इन्फॉर्म करें, वो भी उनको भी कोई मसाइल है उनको भी लेकर आए, वो भी आएँ और अपने मसाइल इस चैम्बर, ये चैम्बर खुला है हर वक्त आप लोगों के लिए और ये बेसिकली बना भी स्मॉल ट्रेड के लिए है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए, हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। ताल्लुक है मेरा, हमारा एक पुराना है, आप जानते ही होंगे, वालिद साहब ने शुरू किया था पंजाब कार एसी के नाम से। देखिए मैं चौधरी साहब के साथ, मसूद भाई मेरे बड़े भाई हैं, जब देखिए फैसला ये नहीं है कि उन्होंने थोपा मेरे पे, उन्होंने मेरी एक ही हमेशा चैम्बर से शिकायत थी। मैंने चैम्बर में गया, देखा, लेकिन वहाँ पे जाके ना एक अजीब नज़र आया कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट चाहते हैं। वो स्मॉल ट्रेडर को आज तक उन्होंने ना कभी पूछा। अगर किसी FBR के पास गए तो उन्होंने कहा यार साढ़े मसले हल कर दो, बाकी जान जन्नत में। और ये हुआ है, बंद कमरों में जाके यही हुआ है। उन्होंने अपना मुफाद के लिए ही काम किया है, किसी स्मॉल ताजर के लिए काम नहीं किया। और कितनी दफ़ा मार्केट जब इलेक्शन होते हैं तो वो मार्केटों में आ जाते हैं कि जी आप आएँ अब करें। देखिए हम सियासी लोग तो है नहीं, हमने काम करके दिखा। तो हम इंशाल्लाह ताला जैसे चौधरी साहब ने कहा कि हम खड़े हैं, 24 आवर्स हमारे फ़ोन ऑन है, हम आपके साथ खड़े हैं और स्मॉल ताजर के साथ खड़े हैं। देखिए हम लोग अगर आज छोटे ताजर का नहीं हेल्प करते तो उसकी आवाज़ कौन सुनेगा। और जैसे भाई ने भी कहा कि आप जिसको भी जो भी है अपने लेटर हेड पे ये करके दे, ताकि हमें भी पता हो कि ये हमारे पास आया हुआ है और हमने इसमें से ये काम करनी है। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, नीयत हमारी साफ़ है, नीयत में हमारे कोई खोट नहीं है, ना ही हमें वो टिकटॉक चाहिए, ना ही हमें कोई पब्लिसिटी चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हमारी यही। और आप 2010 तक मैं कराची में था, कराची काम करता रहा।
और वो जो भाई साहब ने बात की है ना कि छोटे ताजरों को कुछ समझा नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे कराची चैम्बर का ये होता था कि सबसे पहले हम छोटे ताजरों को, मैं तो भी छोटे का ताजर था, उनको अकोमोडेट करते थे, उनके मसाइल हल करते थे, और डरते नहीं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कराची से जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो जो लोग मेरा बैकग्राउंड को जानते तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि बहुत चैम्बर ज्वाइन करो, लेकिन जब मैंने ये देखा उनकी बात तो मैं सेकंड करता हूँ भाई की, कि वहाँ से अपने अपने वाली कहानी थी कि यहाँ मेरा काम हो जाए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने ज्वाइन इसलिए भी नहीं किया था यहाँ बहुत चैम्बर, मेरे आते एक मसला आया था पूरे पाकिस्तान में पॉलिथीन बैग पे पाबंदी का इशू आ गया, तो इस्लामाबाद में एक मीटिंग बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग को मैंने यहाँ जो बड़े ताजिर थे चैम्बर के थे उनको मैं पर्सनली दिया कि ये मीटिंग कॉल हुई है, बड़ी सीरियस मीटिंग है, आप शिरकत करें मेरे साथ चलें, लेकिन किसी ने ये नहीं किया, मेरे साथ में जाना गवारा नहीं किया। बहरहाल मैंने वो मीटिंग अटेंड की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको मसले को वहीं पे पाया। उसके बाद मैं यहाँ चूँकि हमारी एसोसिएशन है, तकरीबन 150 की करीब फैक्ट्री है, स्मॉल एंड इंडस्ट्री है शेरापुर बंद रोड, तो वहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा भी यही है कि गवर्नमेंट के ताल्लुक अपनी जगह और गवर्नमेंट से मामला सही कराना अपनी जगह, हमने अपने आप के तहत हमने वहाँ रोड भी बनवाते हैं, सीवरेज का सिस्टम भी सही करते हैं, सारे मामला, लेकिन हमारा एक असूल था कि हमने अपने सारे मेंबर्स को किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं थी। गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक जिस हद तक हम उम्र करवा सकते थे, जो उनके उसमें था बर्दाश्त पे, वो भी हम करवाते थे, रजिस्टर भी करवाते थे, ताकि गवर्नमेंट इदारों को भी ये महसूस हो कि यार ये हमारे साथ ताउन करते, हम एक पुल का काम देते थे गवर्नमेंट इदारे और अपने मेंबर्स। तो यहाँ मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत कवानीन बनाती है, बेशक उसमें अक्सर कवानीन हमारी उसके खिलाफ भी होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, वो ग्राउंड रियलिटी से खिलाफ भी कमरों में बैठ कवानीन बना देती है, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो कवानीन हुकूमत ने बनाए हैं कोशिश करें कि उसके मुताबिक अमल भी करें, ताकि हमारे ऊपर कोई क्लेम ना रहे। और मैं ये भी जानता हूँ जिस तरह दुकानदारों के मसाइल होते हैं, मैंने जोड़िया बाजार बड़ा अच्छा बैठा हूँ अपनी सेल्स पॉइंट में, कि एक तो ये थड़े वाला सिस्टम है जो कि टोटल गैर कानूनी है। एक दुकानदारों का वो मसला होता है कि आपका माल कहीं से आया, ज़ाहिर फ़ौरन दुकान के अंदर नहीं जाता, पहले वहीं आपके सामने फिर आप उसको उठा देते रहते, या किसी कस्टमर का माल आप देखते हो पैक किया हुआ है, उसकी गाड़ी आ रही है क्या है, तो उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है कि उसको इंक्वायरमेंट में ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरमेंट वो होनी चाहिए कि पक्का खड़ा या इस किस्म की बात करते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला सदर साहब की मैं बात लेकर चलूँगा उनसे। हाँ, वो दुकानदार फौरी तौर पर अंदर नहीं कर सकता, आप एक गाड़ी वेलकम करने, मुबारकबाद देने, आप सबको भी मुबारक है जी। ये आप सबका चैम्बर है, हमारा नहीं है। जैसे जो साहब ने फरमाया कि हम सर खादम बैठे हैं इधर आपके लिए, इंशाल्लाह जो हुक्म आप लगाएंगे जिस मार्केट में जिस जगह पे, हम इंशाल्लाह शाना बशाना आप हमें देखेंगे, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे पहुँच के आपके मसले के लिए हल के लिए कोशिश करेंगे। मैं इस चैम्बर का डीसी भी हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा सियाको सबाक बताना चाहता हूँ। जब चौधरी साहब उस चैम्बर में थे तो चौधरी साहब की उनके साथ लड़ाई जो ना वो सिर्फ इस बात पे थी कि वो छोटे ट्रेडर को कहते थे कि ये अछूत है। किसी दुकानदार की ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो प्रेसिडेंट के कमरे के आगे से भी गुजरे। चौधरी साहब को उस वक़्त भी सदारत मिलती थी। हमने जब LBF बना के हम चले, उस हर साल इलेक्शन में इनको जो ना मिलती थी, तो इन्होंने कहा एक ही स्लोगन था कि मैंने अपने ताजरों को नहीं छोड़ा। हम इस जद्दोजहद को लेके चले। ये जो आप समाल आपका ये समाल चैम्बर है, इसको रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की गई, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। मैं हेड्स ऑफ चौधरी साहब, सैयद अहमद साहब, दूसरे सीनियर, इन्होंने रात दिन मेहनत की। इस जगह पे आज आपको लेके आए कि ये आप लोगों का चैम्बर है। अगर आप उस चैम्बर की बात करें तो आज उस चैम्बर में जो एक्टिविटी हो रही है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह महरूने मिन्नत चौधरी साहब की और चौधरी साहब की LBF की है कि उन्होंने मजबूरन वो काम किए जो हमारा लोगो था। अगर आप LBF का पुराना लोगो देखें ना,
जो काम हमने आप लोगों के लिए कहे थे वो उन्होंने अपनी मजबूरी के तहत उसमें से काम किया। लेकिन ये चैम्बर खालिसतन आप लोगों के लिए है। स्ट्रेंथ बेसिकली कोई अकेला बंदा कर कुछ नहीं सकता। अगर आप कहें कि अजमत शाह साहब, चौधरी साहब, हमने जब ये इसी बनी ना और हमें लिया गया तो हमारे औथ में ये बात की थी कि भाईजान आप लोग इसी नाम के हो, आपको मैं खिदमत गुजार ले रहा हूँ इन मार्केटों के। हम सर आपके खादम हैं, खिदमत गुजार हैं, जिस जगह पे आवाज़ देंगे खड़े होंगे। लेकिन आपसे हमें ज़रूरी जो ये चाहिए कि आप हमारी स्ट्रेंथ को मजबूत किस तरह करते हैं। उसका सिर्फ एक तरीक़ेकार है। जिस तरह अभी मैंने सारे दोस्तों की बहुत अच्छी सारी बातें सुनी, आप लोगों के मसाइल भी सुने। हर मार्केट अपनी मार्केट में से देख ले कितनी दुकानें हैं, उतने मेंबरशिप फॉर्म ले, उतने जो ना मेंबर बना दे। जब चौधरी साहब, अजमत शाह साहब, मसूद भट्ट साहब किसी के हायर अथॉरिटीज़ पे जाके बैठेंगे ना तो कहेंगे कि मेरे पास इतने हज़ार मेंबर हैं, मैं उसको भी पता होगा कि अगर मैंने इसको उठाया तो कल मेरे पास बाहर जमे का फीड लगा होगा। आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद बनाई। मैंने आप लोगों के जो ना वो बातें सुनी। ये आपका चैम्बर है, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। आप हमें जिस वक्त हुक्म करेंगे आप हमें उस जगह पे खड़े देखेंगे। ये भी चौधरी साहब ने आपको बताया